So thank you once again to Gursimran and Aniruddha and District IIG Murshidabad for uh, having the backend works to organize this session at a quick, short notice. Despite that, you are having holidays in West Bengal, but you made sure to join this session. So thanks once again. And now I would like to move forward with the uh, opening remarks of Dr. Aniruddha Day. So I'd invite him to share his remarks and then we will continue with other speakers. So Dr. Day, if you are there. आई थिंक डॉक्टर डे अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए. Okay, all right. No issues. So meanwhile, I'll be sharing the current situation in that district. Yeah. So this riverbank erosion is definitely not new. It has been a frequent affair in Murshidabad district, and especially the blocks of Samserganj and uh, Lal Lohar. It's another Lal Goa. There are two blocks that are severely affected by this ongoing riverbank erosion in West Bengal. One is the Samserganj block, and the other is the Lal Gola. In recent times, the erosion has increased a lot, especially from September 23 this year. On that particular day, the three houses, a mosque, and part of a graveyard were washed away at one of the villages, that is Loharpur. Then 150 people had been evacuated. 2 days later, again, two houses were eaten up by the river nearby Pratapganj village. Then another 100 people were evacuated on that day. On September 27 and October 4 also, erosion occurred at Siktarpur village. The erosion over 2 days swept away around 12 houses and 600 people left the villages in panic. And several others also dismantled their homes with the fear that it will be again submerged into the river. The most recent erosion occurred on October 6 at Uttar Chandar village, and October 7, around 1,200 people were moved out of that area after dismantling their homes. So in all, 1,500 have become homeless in last 2 weeks only. And if I talk about the official data or official numbers from the District Disaster Management Authority, the DM professional, around 900 affected people are there in last one month. 700 are from Samserganj block and 200 from Lalgola. Around 85 houses have been damaged, 60 houses in Samserganj and 25 houses in Lalgola block. Around 13 villages are affected, two blocks, as we discussed. Then the emerging needs are basically the shelter, tarpaulin, and in terms of food, dignity kits, fuel, bucket marks, some cash assistance also. Although the district administration and the block administration, they are also providing materials, but it's not obviously as required. The other department, that is irrigation department, they have also started their survey to assess areas which has breached embankments so that they can repair that. And the district administration, to some people, they have also provided lands, but
due to the high density and lack of land availability, that is also not enough to accommodate all the affected communities. Currently, the affected families are staying in the government-run primary schools, and they're having some of them are staying on the roads also, and some on the higher grounds with the help of the tarpaulin sheets that is being distributed by the block administration. Currently, if we talk about the humanitarian responses, field visit was conducted by PRISM and Science Connect recently in monsoon also, and before that in summer season, to a municipality town that is called Dhulian, to understand and observe the situation, carry out some study to learn about the causes of river erosion and concerns of affected population. They have also shared their draft report. And so these are some of the recent updates on the riverbank erosion there in Murshidabad in terms of the situation, the government responses, humanitarian responses. Now, what is the current priority is that how, as humanitarian stakeholders, we can also come forward and support the affected community and also explore the options of some of the sustainable resolution to this ongoing problem. Government has also, as per the reports, spent around package for this area, but still the damages are going on. So with this purpose only, we have gathered here to brainstorm on all these things and come up with some of the humanitarian support. So once again, I welcome you all, and if Dr. Aniruddha Dey has joined, he can share some of his remarks, and then we will request one of the local guys, Mr. Farooq, to share the ground situation that is prevailing currently. So, Dr. Dey, if you are there now, or Dipanjan Mishra, if you'd like to come in. Yes, Aniruddha जी अभी तक ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं. I don't know what is the reason actually. तो आपने तो सभी बता दिया ऑलरेडी कि हम लोग our team from Prism and Science Connect, we visited that place Tulian for 2 times in the month of May and in the month of September. So here is the sorry, I'm sharing the screen. Is it visible? Yes. So we visited these places. I think yeah, this is the Dulian Ghat from अच्छा we. ओके या थैंक यू Okay, Altamas ji, yeah. Altamas bhai. I Okay, am okay. here. I am here, and it's really a very pathetic condition. I am waiting for Mr. Farooq, Mohammad Farooq, ताकि हम लोग उनसे सुन पाए. हम हिंदी में ये सेशन करने का सोचा था. तो ये जो मैंने अभी तक जो सोचा है कि आज दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है, तो इसमें लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा, चलता ही रहेगा. लेकिन इससे इसी एक समय है, एक टाइम है, जिस टाइम में कुछ लोगों का उनका नींद उड़ गया है, उनको पता नहीं क्या होगा कल, तो आज रात को भी हो सकता है. तो इसीलिए हमने सोचा जो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग कैसे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्डर जो लोग हैं उनको कैसे इकट्ठा करके उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज हम कर सके. तो ये एक
प्रयास है। दूसरा प्रयास ये है कि हम लोग चाहते हैं कि इसका बहुत बहुत प्रॉब्लम रह गया है, लेकिन एक मामूली फ्लड ये नहीं है। ये जो मामूली सॉइल इरोशन, रिवर इरोशन ये नहीं है जो अक्सर हम देखते रहते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, जो एक दूसरा कंट्री है। तो एक प्रॉब्लम मतलब हमने जो फारक्का बैरेज से जो पानी आ रहा है, इसका जो रिवर इरोशन हो रहा है, इसमें हम लोगों का हक नहीं है, हम लोगों का अधिकार नहीं है। हम बांग्लादेश तक पहुंच नहीं पाए, जा नहीं पाए, लेकिन हमको पता है क्या उधर भी हो रहा होगा और क्या उधर भी होता रहता है अक्सर। तो ये सब कुछ सोच के एक तो बायलैटरल डायलॉग चाहिए। तो हम पहले ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी है, हमारा जो धुलियान में जो रहते हैं, तो उन लोगों का क्या हाल है उसके बारे में हम जानेंगे। और उनका जो ज़मीन जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, तो ये तो गंगा के नीचे चला जा रहा है। उनका मकान हम देख के आए हैं, बहुत सारा फोटोग्राफ भी दिया हुआ है। तो ये लोग फिर कहाँ माइग्रेट हो रहा है, और जहाँ माइग्रेटेड हो रहा है तो गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल रहता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं उनके लिए। तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि एक एडवोकेसी लेवल पे, एक साइड एक एडवोकेसी लेवल पे, दूसरा साइड कंप्लीट एक रिसर्च के लिए, तीसरा साइड हम थोड़ा सा फंड अगर मोबिलाइज कर पाए तो उससे हम लोगों को मदद कर सकते हैं। तो ये सोचकर हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो अल्तमस जी, थैंक यू। आई थिंक फारूक भाई इज हेयर, तो फारूक भाई को हम लोग बोल सकते हैं कुछ जी बोलने के लिए। बिल्कुल। सो थैंक यू डॉक्टर अनिरुद्ध डे जी। एंड हमारे साथ फारूक साहब जुड़े हैं जो कि मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज ब्लॉक से हैं और अफेक्टेड कम्युनिटी का हिस्सा है। तो फारूक जी, आप यस प्लीज़ वीडियो अगर ऑन कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज आप प्लीज़ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को। सर हमारा एक मिनट फारूक भाई, इससे पहले मैं अल्तमश जी को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे को ज्वाइन करते हुए लेट हो गया है। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट हैज हैपेंड, बट इसमें जो ऑर्गेनाइजर है, ये ऑर्गेनाइजर जो जैसे कि कार्नेपी है, कार्नेपी क्लाइमेट एक्शन रिसोर्स नेटवर्क एशिया पैसिफिक है। ये जो क्लाइमेट चेंज लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। और कार्नेपी का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा मुद्दा है लोकलाइजेशन, कि लोकल तौर पे लोकल कम्युनिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, तो उसके ऊपर हम कार्नेपी में चर्चा करते हैं। और कार्नेपी इसके साथ साथ यूथ कॉन्क्लेव, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यूथ कॉन्क्लेव, यूथ लोग जो है जिसका मतलब जान है, शान है, जो कुछ कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो लोग क्यों ना आगे बढ़ के आए। तो हम लोगों का एक यूथ कॉन्क्लेव हम लोगों ने बनाया, इनिशिएट किया, बनाया नहीं इनिशिएट किया। तो दैट हैज बीन टेकन अप बाय young leaders, and Dipanjan Mishra is here on behalf of this youth conclave, and I would request Dipanjan to say a few words. Dipanjan is youth leader for chapter India chapter of youth conclave. Thank you. उसके बाद हम फारूक शेख के पास चले जाएंगे सीधा लोकलाइजेशन के ऊपर बात करने के लिए। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम दीपांजन है, और मैं रहता हूँ एक कोस्टल एरिया में, मैं सुंदरबन में रहता हूँ। और ये जो फ्लड है, जो कुछ भी है, ये मैं बहुत दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ, फ्रॉम 2009, फ्रॉम आयला। एंड उसके बाद आम्फान भी हुआ, यास भी हुआ है, तो ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। और कोस्टल एरिया में जो प्रॉब्लम्स है वो तो रोज़ ही देखते हैं हम लोग। पर जब मैंने सुना तुलियान के बारे में और जानने में भी आया, तब हम लोगों ने एक प्लान किया था उस वहाँ पर प्रिज्म और साइंस कनेक्ट, प्रोफेसर तोयदुल इस्लाम, डॉक्टर अनिरुद्ध दे, मैं था, और एक भैया थे हम लोग के साथ,
ये सब मिल के हम लोग गए थे मई महीने में वहाँ पर देखने के लिए कि हालत क्या है। पर वहाँ पर जाने के बाद जो कोस्टल एरिया का प्रॉब्लम है वो तो ठीक है ही, पर एक्चुअल में धुलियान का जो प्रॉब्लम है और मिडिल स्ट्रीम में वो तो अपर भी नहीं है और लोअर स्ट्रीम भी नहीं है, लगभग लोअर के आसपास ही है, तो मिडिल स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर इतना इरोशन हो रहा है, इतना लोगों के घर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देख के बहुत बुरा लगा। और उसके बाद जब सितंबर महीने में गए, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, 10-12 दिन पहले, तो उस टाइम में फारूक भाई के साथ मुलाकात हुआ और फारूक भाई ने दिखाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। रात को लोग नींद में सोते सोते उसका घर चला गया, कुछ मतलब जान नहीं गया, यही बहुत बहुत बड़ा बात है। तो मैं एक्चुअली इंडिया चैप्टर के कन्वीनर हूँ यूथ कॉन्क्लेव का, तो उसके थ्रू मैंने सोचा कि यूथ कुछ कर सकते हैं इसको लेके। तो वहाँ पर जाने के बाद ये भी देखा हम लोगों ने कि लोगों को पता है कि ये उनका ज़मीन खो रहे हैं वो लोग, पर रीज़न क्या है ये लोग उन लोगों को नहीं पता। रीज़न थोड़ा बहुत पता होगा, लोगों को लगता है कि फारक का बैरेज ही है सब कुछ रीज़न, पर ये नहीं है। उसके साथ भी बहुत कुछ होता है, सेटलमेंट है, लोगों का काम और बहुत कुछ जुड़ा होता है इसके साथ। तो ये अवेयरनेस भी उनके पास नहीं है और उन लोग के पास इसका आंसर भी नहीं है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ये घर तो टूट गया है, पर इसके बाद कहाँ जाए? और ये बंद नहीं हो रहा है और बंद होगा भी नहीं। तो उसके ऊपर हम लोगों ने रिपोर्ट भी बनाया, पर ये लग रहा था कि रिपोर्ट बना के और 2-4 लाइन लिख के कुछ होगा नहीं। तो कुछ करना चाहिए वहाँ पर, एक अवेयरनेस तो बिल्ड करना ही चाहिए। और जो रैपिड रिस्पॉन्स होता है, बहुत जल्दी कुछ करना होता है, उसके लिए हम लोगों ने सोचा और यूथ कॉन्क्लेव में भी हम लोगों ने बात की है। इसके साथ हम लोगों को बहुत जो हेल्प मिला ये अनिरुद्ध जी से और बांग्लादेश से हमारे प्रोफेसर सर है तवीदुल सर, उनके पास से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन लोगों के रैपिड रिस्पॉन्स के बाद ये आज हम लोग पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। जस्ट यही बोलना है कि यूथ ये कर सकते हैं और आगे हम लोग ये इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे तरफ से तो फुल सपोर्ट है और मैं काम भी कर रहा हूँ और भी यूथ्स को एक साथ लाने के लिए भी मेरा मकसद है और काम भी चल रहा है। तो मुझे मुझे लगता है कि फारूक भाई के बात हम लोग जितना ज़्यादा सुन पाए उतना ही अच्छा होगा। तो अल्तमश जी प्लीज़ आप फारूक भाई को बोलिए बात करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you, Dipanjan ji. Farooq ji, can you please share now? यस सर। जी बिल्कुल, थैंक यू। सर हम शमशेरगंज से बोल रहा हूँ, फारूक शेख। हमारा गांव शमशेरगंज का धानगरा में है। तो हम शमशेरगंज के कटाव का जो हाल है वो 2020 साल से अभी तक क्या हाल है वो बताएंगे थोड़ा। एक तो पहले जो गंगा कटाव हुआ था, एक बात पहले सोचना चाहिए, जो यहाँ पे गंगा कटाव हो रहा है, यहाँ पे बाढ़ बाढ़ का मामला नहीं है। तो गंगा कटाव जो है वो गंगा कटाव में सब जमीन हड़बड़ी या सब्जी जमीन वो सब चला जा रहा है। तो पहले जब 2020 साल में गंगा कटाव हुआ था, वो पहले धानगरा और शिवपुर और धुसड़ीपाड़ा में हुआ था। वहाँ पे 3 किलोमीटर तक गंगा कटाव हुआ। धानगरा, शिवपुर, हीरानंदनपुर और धुसड़ीपाड़ा, यहाँ पे 15 अगस्त को गंगा कटाव हुआ था शुरुआत पहले। उसके बाद 19 अगस्त 2020 साल में रात 11 के बाद उस दिन भी गंगा कटाव हुआ। तो वहाँ से गांव से गंगा लगभग 500 से ज्यादा मीटर दूरी दूरी में था। लेकिन एक ही दिन में, एक ही रात में गंगा कटाव के मामले में वो गांव के पास आ गया कटते कटते। उसके बाद 4 सितंबर 2020 साल में रात 3 या 3:30 बजे फिर भी गंगा कटाव शुरुआत हुआ। उसके बाद उस दिन बहुत बहुत सारा जमीन जो
पेड़ का गाछ था, लीची, आम, बहुत सारे बागान। उसके बाद जो गांव के घर था, दो तला, तीन तला, बहुत सारे गांव, ये लगभग 50 से ज्यादा घर गंगा कटाव में बह गया। उसके बाद वहाँ पे एक आईसीडीएस का स्कूल भी था। उसके बाद धानगरा के नदी के किनारे में एक बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का जो कैंप होता है, छोटा बीओपी बोलता है, वो भी था। वो भी गंगा नदी में बह गया। उसके बाद अ, फिर भी गंगा कटाव शुरू हुआ। अ, उसी टाइम पे धानगरा का लगभग 200 से ज्यादा घर डर के वजह से घर तोड़ फोड़ लिया, जो दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए, जो गंगा में बह जाएगा, कटाव में चला जाएगा घर। तो इस डर के वजह से 200 से ज्यादा घर तोड़ लिया। जो जो घर का जो ईंटा है, वो जो सामान है, वो दूरी में लेके भाग चला। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर भी उस महीने में ही शिवपुर में फिर भी गंगा कटाव शुरू हुआ। 50 घर गंगा नदी में गंगा कटाव में चला गया। उसके बाद वहाँ पे लगभग 50 से ज्यादा घर गंगा कटाव के डर के वजह से तोड़ दिया। उस महीने में फिर भी 12 सितंबर को 2020 साल में धानगरा का जो पूर्व साइड का जो गांव था धूसरी पाड़ा, वहाँ पे पूरा के पूरा हिंदू महल था। तो वो भी पूरा के पूरा गांव गंगा कटाव में चला गया। वहाँ पे 60 से ज्यादा घर था, जो परिवार था। पूरा के पूरा गांव वहाँ पे नदी के गंगा कटाव में चला गया। उसके बाद 2-4 जो घर था वो भी तोड़ के दूरी में भाग गया। तो अ, उसके बाद 2021 साल में इ- 2000 हेलो। जी फारूक जी, आपकी हाँ आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई हाँ, थी। आवाज सुन रहे हैं? तो जी हाँ सुन रहा अभी है। आ रहा हाँ, सुनाई दे रहा है। तो सुन उसके रहा है बाद सब। 2021 साल में बहुत सारे फाका जमीन, घासपाला बहुत सारा गए। उसके बाद हम आते हैं 2022 साल में। 22 साल में सितंबर महीना में शमशेरगंज का जो धुलियन के पास में जो प्रतापगंज है, वहाँ पे 27 यानी 27 घर गंगा नदी में चला गया। उसके बाद आसपास जो घर था, वहाँ पे वहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा घर गंगा कटाव के डर से तोड़ फोड़ लिया। उसके बाद उसी के पास का जो गांव था महेश टोला, वहाँ पे भी 40 घर गंगा नदी में चला गया। और बहुत सारे घर, 30 से ज्यादा परिवार को घर का नुकसान हुआ। वो घर को तोड़ दिया, वो दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। उसके बाद हम आते हैं 2023 या अभी जो चल रहा है। तो हम 2024 और 23 का बताएंगे। तो ये वो जो है सिकंदरपुर में 25 प्लस भारी जो घर था वो गंगा कटाव में चला गया। इसके बाद सिकंदरपुर में 200 से ज्यादा परिवार का घर तोड़ लिया गया है गंगा कटाव के डर से। उसके बाद चाचंडो हमारा पास के गांव है, शमशेरगंज के हैं अंदर में। तो वहाँ पे 35 घर को गंगा नदी में चला गया। उसके बाद यहाँ पे 200 250 से 300 परिवार का घर डर के बाजे में अभी तक तोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा पास का जो गांव है लोहरपुर, वहाँ पे 16 घर गंगा नदी में बह गया। और 100 से ज्यादा घर
गंगा कटाव के डर के वजह से तोड़ रहे हैं अभी तक। और उसके बाद हम आते हैं कमालपुर। हमारा गांव के जो पूर्व तरफ जो कमालपुर है, वहाँ पे 20 से ज्यादा घर गंगा नदी के कटाव में चला गया और 30 से ज्यादा घर तोड़ फोड़ लिया। हम कुछ बता रहे जो 100 मीटर के अंदर आवाज आ रहे हैं। हेलो हेलो। जी फारूक साहब, आवाज आ फारूक रही है जी, सर। तो हम कुछ आप बताइए। कुछ ये देना चाहता हूँ। जो हमारा ये शमशेरगंज में जो 100 यानी 100 मीटर के अंदर जो स्कूल प्राइमरी जो गवर्नमेंट का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो 5 स्कूल है जो 100 मीटर के अंदर है। और दो एमएस की स्कूल है, और 2 एमएस की स्कूल है, और एक स्कूल तो गंगा नदी में चला गया। उसके बाद बहुत सारा मस्जिद मंदिर चला गया। और 700 मीटर के अंदर 3 हाई स्कूल यानी जो एचएस लेवल का हायर सेकेंडरी का स्कूल है, वो 700 मीटर के अंदर 3 स्कूल है। उसके बाद हमारा गंगा गंगा के किनारे से 800 मीटर के अंदर एनएच 34 यानी अभी 12 हुआ, जो 12 है, NH 12। उसके बाद रेल है 800 मीटर के अंदर ही है। तो ये है अभी शमशेरगंज का सिचुएशन। जो बहुत सारा घर, ये जायदाद बहुत सारा लोग खो दिया है। तो यहाँ से यहाँ के लोग अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला। जो वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर किसी के किस तरह से उसकी उसी का जिंदगी बिताएंगे। उसके बाद उसका जो बाल बच्चे है वो किस तरह से शिक्षा देंगे। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी तक। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो उसको रहने के लिए जो घर बड़ी चाहिए, वो है अभी अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा कुछ बातें। ये फारूक भाई, हाँ सर। थैंक यू। आपका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने बोला है, तो हाँ सर। आपका कुछ वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, कोई फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं? हाँ एंड सर, बहुत सारा वीडियो है वो हमारा कंप्यूटर में है, हम फोन करते हैं। आप कुछ मतलब प्रेजेंटेशन बनाए हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको हाँ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर ठीक है, स्क्रीन हम जो है, कंप्यूटर पे ये में जाते हूँ। शेयर स्क्रीन में है। या तो क्या भी। अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो गुरसिमरन जी को आपको मेल भेजा हो, तो मेल से आप गुरसिमरन जी, अल्तमश जी का किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो वो मेल करके देने से वो लोग भी शेयर कर देंगे। दूसरा बात यह है, तीसरा ठीक है, बात यह है, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? हाँ, लेकिन एक एक करके दिखाइए। वो ये तो पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में जो फोटो है वो तो छोटा छोटा दिख रहा है, एक एक करके दिखाइए। है सर। हाँ, इस तरह से गांव के जो पेड़ था वो गंगा नदी में बहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। इसके बाद इस तरह से घर बाड़ी गिर रहा था।
सर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। फारूक भाई, हाँ सर। आप वीडियो दिखाते दिखाते कुछ बोलिए, कि वीडियो का हाँ क्या सर। कुछ विवरण भी देते जाइए। हाँ, तो इस तरह से जो फाका जमीन था वो इस तरह से गंगा नदी में कटा हो रहा था। और अ, इस तरह से पका बाड़ी और घर तोड़ फोड़ लिया था। हाँ। फारूक जी, हाँ, आप अगर इन वीडियोस की डेट कब की ये वीडियोस हैं और किस गांव की है ये भी साथ साथ बताते चलें तो। ये धानगरा का वीडियो है और 2020 साल का अगस्त महीने का है। ओके। और कोई रीसेंट हाल फिलहाल की कोई वीडियोस हैं आपके पास? हाँ सर है। तो हमारा मोबाइल में है तो कंप्यूटर में इस तरह से तोड़ लिया गया था। ओके। और अभी कितनी फैमिलीज हैं, कितने परिवार हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं तो वो? वो अभी गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 150-200 हो जाएगा। और ये लोग हाल फिलहाल में ही वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं या काफी महीनों से रह रहे हैं वहाँ पे? अ, जो प्रतापगंज इलाका है वहाँ पे बहुत दिन से रह रहा है, तो 1 साल से ज्यादा होगा। और अ, जो प्रतापगंज है, लोअरपुर प्रतापगंज, यहाँ पे थोड़े दिन पहले गंगा काटा हुआ था महीना के अंदर, वो उस दिन से रह रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे ब्लॉक की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है और क्या क्या वहाँ पे आपके हिसाब से और भी ज़्यादा ज़रूरत है जो एज ए ह्यूमैनिटेरियन स्टेक होल्डर्स हम लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं? सर वहाँ पे ब्लॉक के तरफ से सिर्फ एक तिरपाल और कुछ खाना और कुछ पहनने का कपड़ा मिला, और इस तरह से चीज मिला, और कुछ ऐसा नहीं मिला बड़ा कुछ। और एक पहले बताना चाहिए था, जो धानगढ़ा में जो गंगा काटा हुआ था 2020 साल में, तो वहाँ के गांव के लोगों को 70,000 करके दिया गया था। 635 लगभग होगा। और 140 लोगों को एक इकट्ठा करके जमीन दिया गया था। उसके बाद जितने सारे गंगा कटाव में चला गया वो उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो ओके। जो 70,000 जो रुपया मिला, तो पहले एक बात सोचना चाहिए, जो जिसका घर चला गया वो तो बहुत कीमती का था, लेकिन वो 70 में क्या करेगा? जो तोड़ फोड़ लिया, वो जो घर का जो ईंटा है वो दूरी में ले जाने के लिए जो भाड़ा लगता है वो उसमें चला जाएगा।
हाँ, इसमें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। थैंक यू फारूक साहब। तो डॉक्टर डे, हमें कुछ और जो हम डिस्कस कर सकते हैं? हेलो फारूक सर, साहब। हमारा साथ जुड़े हुए मजहर साहब है, वो उसको कुछ बोलने दीजिए। जी बिल्कुल, श्योर। आई एम राइटिंग समथिंग, सो या मजहरुल भाई, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं मजहरुल इस्लाम बोल रहा हूँ। या फारूक भाई ने लगभग आप लोगों को एक हिंट्स दे दिया जो हम लोग का भी फिलहाल जो हालत है। तो फारूक भाई ने जो बोला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो 10% शायद आप लोगों का एहसास होगा। जो हालत अभी है, 90% अब हमको आपको डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऐसा हालत है यहाँ का। नदी के नियरेस्ट ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं, ये रूरल एरिया है। तो गरीब लोग रहते हैं, इसलिए वो छोटा छोटा घर है, फैमिली बड़ा है। इसलिए जब अगर एरिया के हिसाब से मापा जाए ना, हो सकता है कि 200 स्क्वायर फीट का 200 या 2000, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का अगर एरिया हो ना, तो उस एरिया में हो सकता है अगर बड़ा घर हो तो 5-6 घर होगा। लेकिन वो लोगों के अंदर उस एरिया में 10-12 घर है। इस हालत में ये लोग रहते हैं इस एरिया में। कोई भी जगह अगर गिरता है ना, तो वहाँ तहलका मच जाता है। लोगों का हाहाकार, उन लोगों का रोना देख के अफसोस होता है हम लोगों को, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन करने के लिए अगर कुछ इरादा रखे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आपको एग्जांपल देते हैं। जब 2020 में जब यहाँ का नदी का वो हालत स्टार्ट हुआ था, गिरना सब घर वार, तो उसके बाद जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, शुरू में तो पहले खेती बाड़ी था, उसके बाद वो पेड़ पौधा था, उसके बाद गांव था। गांव में पहले छोटा मोटा घर था, छोटा मोटा घर आराम से गिर गया। उसके बाद जो बड़ा बड़ा घर था ना, वो सब जब गिर गया, तब वहाँ वो गिरना बंद हो गया। शायद उन लोगों को ना ईट या फिर कंक्रीट जो होता है, वो कंक्रीट में वो शायद स्ट्रांग हो गया मिट्टी वहाँ का, इसलिए वो गिरना बंद हो गया। और जब जिस जगह अभी नया गिर रहा है ना, उस जगह भी वैसा ही हालत हो रहा है। जहाँ गिरता है वहाँ ऐसा नहीं है जो 2020 से अभी तक 4 साल से एक ही तरह से गिर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ गिर रहा है वहाँ थोड़ी देर, थोड़ा थोड़ा 10-20 या वैसा ही घर जब गिरता है ना, तब वहाँ का मिट्टी स्ट्रांग हो जा रहा है, तब वो हर नहीं गिरता। फिर अगली जगह सामने अगली वर्ष अगला ईयर फिर सामने दूसरी जगह गिर रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर स्टेप लिया जाए, जैसे आपको बोल रहा हूँ, कि मिट्टी स्ट्रांग हो जा रहा है, अगर कुछ ईट ईट या फिर अपना कंक्रीट जब गिरता है तब, तो उस तरह का कुछ अगर स्टेप लिया जाए, गवर्नमेंट को अगर प्रेशर दिया जाए या रिक्वेस्ट हम लोगों के नेता के थ्रू किया जाए, यहाँ के लिए कुछ करे, तो कुछ हो सकता है। ये देख के लग रहा है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या हो रहा है, जब भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, जैसे घर वर गिरता है या टाइप का कुछ होता है, तब वो बाहर से कहाँ से इधर उधर से वो क्या कहते हैं उसको, रेत लेके आते हैं। कैरी बैग में भर के रेत लेके आते हैं, उस रेत को वहां देते हैं। तो ऐसे हालत में तो रेत में काम नहीं होगा और हो भी नहीं रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम अगर कहीं से पत्थर वत्थर लेके आए, वहां अगर स्ट्रांग करके थोड़ा
ज्यादा अगर जरूरत पड़े, क्योंकि वहां जब गिरता है तब थोड़ा गहराई ज्यादा हो जाता है। अगर कुछ इस टाइप का कुछ अगर करे तो कुछ हो जाएगा, तो रुक जाएगा। जो लग रहा है 4-5 साल से जब हम लोग देख रहे हैं, पहले इससे पहले भी बहुत सारे हो चुका है, हमें उतना तो याद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नजदीक, अपने गांव के यहाँ नजदीक जो हो रहा है, हमें यही लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इस टाइप का स्टेप लिया जाए तो रोका जा सकता है इसको। शायद गवर्नमेंट का ऐसा कुछ इरादा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो हर चीज मेंटेन हो रहा है। पॉलिटिकल जो एरिया का, जो लोकल एरिया, जो पॉलिटिशियन है उन लोगों के थ्रू, हम लोगों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो गवर्नमेंट के ऊपर तक जाए। और ऊपर क्या सोच रहा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। हमें हर चीज पता चल रहा है नीचे का जो पॉलिटिशियन है, या फिर उन लोगों का फेवर में, उन लोगों का सपोर्ट में जो लोग रहते हैं गांव में, उन लोगों के थ्रू पता चल रहा है या दिखाई दे रहा है जो कर रहा है। अब ऊपर वो लोग क्या बोल रहा है, जो इसके लिए क्या सोल्यूशन क्या निकल रहा है, वो लोग हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो रेत का जो बैग फैल रहा है, हाँ, कैरी बैग से रेत फैल रहा है, इससे काम नहीं होगा। तो शायद अगर आप लोग कुछ कर पाए, गवर्नमेंट के उस ऊंची लेवल तक अगर कुछ पहुंचाए हम लोगों का बात, हाँ, आपके थ्रू अगर जाए तो कुछ हो सकता है। Thank you, Manoj ji. Dr. Day, you are on mute. थैंक यू मजहरुल भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अ, ये फारूक भाई का बोलने के बाद और थोड़ा जानकारी देकर हम लोगों को इसके बारे में सचेत करने के लिए। लेकिन बात ये है कि जो छोटा मोटा लोकल लेवल पे अगर और कोई बात करना चाहिए, ये है एम्पावरमेंट लोकल कम्युनिटी का। लोकल कम्युनिटी खुद बोलते हैं, लेकिन उसमें दो दो तरीका का कम्युनिटी है। एक तो है जिसका घर नहीं तो टूट रहा है, वो जाता है मजा देखने के लिए। ये डिजास्टर टूरिज्म चालू हो गया है, तो ये डिजास्टर टूरिज्म भी अच्छा नहीं है। तो और दूसरा बात ये है कि आप लोग उसमें बैठकर, क्योंकि ना मैंने कुछ बात किया था, टीचर लोगों से भी बात किया, गांव के लोगों से भी बात किया जो डिजास्टर विक्टिम है, उनसे बात हुआ था मेरा। तो मेरा कहना है कि ये जो प्रॉब्लम शायद वो उसको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना मतलब थोड़ा सा दबे हुए है जो कि वो उसको उठा के नहीं बोल पा रहा है। देखिए, एक स्कूल का गवर्नमेंट जब तक ये नहीं देगा कि ये स्कूल वहाँ चला जाए, शिफ्ट हो जाए, टेम्पोरली हो परमानेंटली हो, ये स्कूल का हेडमास्टर का कैपेसिटी नहीं है। स्कूल का किसी भी टीचर का भी कैपेसिटी नहीं है कि स्कूल को शिफ्ट कराए, क्योंकि ना आजकल स्कूल में मिड डे मील आता है, सब कुछ वो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ये एक बात होता है। तो इसके लिए आपने क्या दरबार करा है, तो उसके लिए एडवोकेसी जो है, एडवोकेसी बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोकल लेवल पे कौन है, आपका बीडीओ है, बीडीओ के साथ बीडीएमओ के साथ। तो बीडीएमओ का तो रोल नहीं है सिर्फ तारपोलिन डिस्ट्रीब्यूट करना, सिर्फ किसको चावल देना, किसको डाल देना। और लोगों का भी ऐसा नहीं है रोल कि उसको छीन लेना जो जिनको मिल रहा है। जो अच्छा ठीक है, उससे पहले मेरा घर है, तो जो सड़क पे रह रहा है उसका कुछ नहीं बिक रहा है, तो वो जाने नहीं दे रहा है गाड़ी को, तो रिलीफ मटेरियल भी तो गाड़ी में जाएगा, तो जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो थोड़ा बहुत लोकल लोगों का, लोकल कम्युनिटी को डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा बड़ा मुद्दा मैंने बोला कि जैसा ये
बांग्लादेश में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सोचकर हम लोग, क्योंकि ना देखिए, जिसका जमीन चला गया उसके पास तो ऐसा पैसा नहीं है, सबके पास तो पैसा नहीं होता। और वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखेंगे, तो सोशियो देखेंगे मतलब मैं कम्युनिटी के साथ मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपका वहाँ का कम्युनिटी का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें दे आर ऑप्रेस्ड। वो उसको कुछ दिनों के बाद वो बीड़ी पत्ता और तम्बाकू दे देने से वो बीड़ी बांध के देगा उसको मजूरी, तो उसको एक्सप्लॉइट करने का अच्छा तरीका निकाला है। उनमें वहाँ पे इतना बच्चा है, वहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन है, वहाँ पे ये कोई भी चीज को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात ये है कि मैंने लिखा चैट बॉक्स में, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए चैट बॉक्स में ही मैंने लिखा कि एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स एक होता है, जे हमारा जो घर चला गया, ये जो जब कोई प्रोजेक्ट के लिए, जब कोई रास्ता बनाने के लिए, जब कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, तो बड़ा प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है ना, उसमें अगर आपने एडीबी से लोन लिया कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया कि एफडी से लोन लिया कि कोई भी आपने कोई बड़ा बैंक से लोन लिया, कुछ भी किया, गवर्नमेंट करते हैं, या तो कोई ऐसा है कि गवर्नमेंट बिना नॉन गवर्नमेंट का भी कोई प्रोजेक्ट आ गया कि कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाना है, तो वेयर हाउस अगर बनाओगे तो कुछ जमीन तो चाहिए। तो जमीन क्या करोगे, जमीन खरीद लोगे, तो सब जगह खरीदना संभव नहीं है, खरीदोगे तो भी तो दाम मिलेगा, सब जगह संभव नहीं है। तो ये जो आप उससे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है, तो एक्वायर करते हो, तो एक्वायर करने के लिए उसको कंपेंसेशन देना है, तो कंपेंसेशन देने का एक नियम है, एक कानून है। तो ये जो वो उसको कहते हैं इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट। मैं नहीं चाहता था मेरा घर छोड़ के मैं दूसरा जगह जाने के लिए, मैं नहीं चाहता था, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट। पूरा दुनिया में ये वर्ल्ड बैंक का, एडीबी का एक पॉलिसी, एक पॉलिसी है, अलग अलग पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट को अच्छा तरह सोचा जाता है। उसमें इंटाइटलमेंट मैट्रिक्स होता है जी, किसको क्या मिलना है। तो एंटाइटलमेंट क्या होता है, तो अगर बाढ़ के कारण या रिवर इरोशन के कारण किसी का जमीन चला गया, तो उसको कोई एंटाइटलमेंट नहीं होता है क्या? उसका तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो तो माइग्रेट कर गया, कहाँ कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, ना तो गवर्नमेंट हिसाब रखता है, ना आप रखते हो, ना मैं रखता हूँ, कोई नहीं रखता है। तो उसका भी तो एंटाइटलमेंट होना चाहिए, उसको भी तो क्या मिलेगा, उसको घर मिलेगा, उसको जमीन मिलेगा, उसको क्या मिलेगा। और उस हिसाब से इन्यूमरेशन, तो उसका जो आगे प्रोजेक्शन देख के करते हैं इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट में, जो कि 18 ईयर्स के ऊपर जो लड़का है, एक ही फैमिली में रह रहा है, तो उसको अलग फैमिली हिसाब से कंसीडर किया जाता है। 30 ईयर्स का ऊपर कोई लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, तो उसको अलग फैमिली हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो कोई मतलब विकलांग है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपाहिज, तो कोई ब्लाइंड है, कोई बहरा है, कोई उस किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई भी अपंग है, तो वो उनके लिए भी वो अलग फैमिली हिसाब से सोचा जाता है। तो जानकारी तो हम लोगों को चाहिए, होना चाहिए, उसके बाद तो हम डिमांड करेंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहना है कि इस पूरा दुनिया में अगर जिसको यूएन एजेंसी से जिसका ताल्लुकात रहता है जो कि यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, जाति संघ के साथ उन्होंने इसको कहते हैं आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो आईडीपी मतलब आईडीपी बोलने से उसके उसको वल्नरेबल कह दिया गया, लेकिन उसका वल्नरेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उसको मेरा कहना है उसको सुधारने के लिए, सुलझाने के लिए हम आगे क्या करेंगे। तो एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स नहीं रहने के कारण कोई
अच्छा बीडीओ होगा तो अच्छा बीडीएमओ होगा, तो एक फैमिली को ठीक है, इनको 4 टारपोलिन चाहिए, इनका देना जरूरी है, क्योंकि ना इनका माँ है, इनका तो और कोई घटिया सा होगा जो उससे भी कमीशन खाना चाहेगा, तो उनको ये होगा नहीं नहीं, एक तुमको दिया जाता है, एक ही दिया जाएगा, एक ही ले लो। तो मतलब कोई सिस्टम ड्रिवन अप्रोच इसमें नहीं है। इंडिविजुअल अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा, इंडिविजुअल बुरा हो तो घटिया ये मिलेगा। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं चल सकता है। तो ये जो गंगा इरोशन जो मैंने देख के आया, तो उससे मेरे को लगता है कि ये सिर्फ गंगा इरोशन नहीं, ये हम असम में जाए तो असम में धेमाजी में भी ब्रह्मपुत्र में ऐसा इरोशन होता रहता है, तो उसके कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये जो सब कुछ है, इसको मैं अल्तमश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोगों का एपीएमसी डीआरआर जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ही आता है, तो उसको अगर स्फीयर के तरफ से रिकमेंडेशन में लिया जाए, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स में पूरा लिख दिया, तो उसको अगर रिकमेंडेशन के तरफ से एपीएमसी डीआरआर में अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से डाल दिया जाए, तो देखते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वो लोग चर्चा करते हैं या नहीं, क्योंकि ये जरूरी है कि इनके लिए एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स हो ऐसा लोगों के लिए। तो और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना लोग यहाँ पे मौजूद है, गांव से है बोल के ऐसा भी हो सकता है कि कोई 5-6 जन एक साथ है एक ही सिस्टम से, तो हम ये काउंट नहीं कर रहे पार्टिसिपेंट्स कितना है, और हम लोग जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए तो हम इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गांव में से कोई है तो गांव में से कोई भी अगर बोलना चाहते हैं, अपना सुख दुख की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम भागीदार बन सकते हैं। हम टाइम नहीं देख रहे, तो आप बता सकते हैं गांव में से, जैसा मजहरुल भाई बोले हैं। थैंक यू सर सर। हमारा साथ सोफी सुल्तान भाई है, वो कुछ सोफी सुल्तान कुछ बोलो। बोलना चाहता है, ठीक है। जो नीता धर जी भी हैं, वो भी बोलना चाहती हैं। आई थिंक और महबूब भाई भी आए हैं, महबूब आलम, तो हम लोग उनसे भी सुन सकते हैं बाद में। ठीक है, तो और एक एक करके सुन सकते और हमारा साथ जुड़े हुए जो हमारा जो हायर सेकेंडरी का स्कूल है छचंडा बीजा हाई स्कूल, उसका प्रधान शिक्षक है वो मिर्जाउर रहमान सर है। तो सर कुछ बताइए। हाँ जी, सलाम नमस्कार सबको। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर बोलो। आप हैं। सुनाई दे जी रहा है, सर, जी बोलिए। सर। ओके, थैंक यू सर। अ, जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस हुआ है वो तो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है यहाँ का। आप लोग आए हैं या देखे हैं, लेकिन ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है यहाँ का। इससे पहले 52 के आसपास एक बहुत बड़ा इरोजन हुआ था गंगा का। उसमें मेरा फैमिली खुद अफेक्टेड था, सब कुछ चला गया था। तो अभी तो हम लोग दूसरे इलाके में आ गए हैं, तो 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। तो कुछ नहीं था उस टाइम। एक ही हालात अब 2020 के बाद हो रहा है। हम लोग एक कमेटी भी बनाया था, जो गंगा भांगन प्रतिरोध कमेटी। बहुत एप्लीकेशन भी किया था इधर उधर, बहुत लोग के पास भी गया था, डीएम के पास, मिनिस्टर के पास गया था, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं निकला। जो रिजल्ट तो यही आया था, जो चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ, देख के गया है, पॉजिटिव था। और उसके बाद 100 करोड़ का सैंक्शन भी किया,
लेकिन जब काम स्टार्ट हुआ तो काम ठीक अच्छा नहीं देखा। जो रिजल्ट आ रहा है, काम ज्यादातर होता है जो नेचुरल कैलामिटीज के लिए जो इमरजेंसी फंड होता है, वही फंड यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक फ्लड सिचुएशन में, जो काम में नहीं आता ज्यादातर के लिए। एक्चुअली जो प्लान वाइज जो काम करना है वो नहीं होता है। एक्चुअली ये जो एरिया है तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट दिखा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ठीक हम लोग को पता नहीं है, तो बैरेज जो डिपार्टमेंट है वो बोल देता है जो दिल्ली को बता दिया है वो दिल्ली जाने। हम लोग को तो जो एरिया में इरोजन हो रहा है वो हम लोग का एरिया में नहीं है, वो ज़्यादा दूर है, 20 किलोमीटर के ऊपर है, वो 5 किलोमीटर का अंदर करेगा, काम करेगा, ये सब बोल रहा है। एक्चुअली जो हम लोग बीच में फंस गए हैं, जो एरिया शमशेरगंज के एरिया पूरा बीच में फंस गया है। डिप्लोरेबल कंडीशन है, मोस्टली बी वर्कर है। ज्यादातर जो बच्चे बड़े जाते हैं, 14-15 साल हो जाता है तो क्या मैसन उड़ीसा चला जाता है, केरला चला जाता है काम करने के लिए। माइनॉरिटी बेल्ट मैक्सिमम है, कॉन्शसनेस का बहुत ये है, लैक ऑफ कॉन्शसनेस है यहाँ पे। इसके बाद भी जो होता है, जो किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैंने सोचा है, जो देखा है, ये कि मेन जो कॉज, वो कॉज तो है डिपोजिशन ऑफ सिल्टेशन आफ्टर फरक्का बैरेज। बहुत सा चार्ज हो गया है, जो रेत का डिपोजिशन हो जाता है, बहुत जो पानी बहना, बहुत जो डेप्थ बहुत कम हो गया है यहाँ पे। जो रिजल्ट क्या होता है, जो पास के गांव वो अटैक हो जाता है। और दूसरा जो ये है, जो को प्लान नहीं है, जो एटलीस्ट ड्रेजिंग सिस्टम होना चाहिए, जो बीच में रेत जमा हुआ है उसको हटा देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो धुलियन मेरा स्कूल था, कंचनतला जेडीजे इंस्टीट्यूशन, 92 में वो वहाँ पे मैं स्टडी किया था, तो वहाँ पे था गंगा एकदम नियर बाय था, अभी भी वहीं पे है। ये इसका कारण है जो वहाँ कंक्रीटाइजेशन कर दिया गया है, पूरा कंक्रीट से बांध दिया गया है गंगा को। तो अगर उसी तरह यहाँ पे काम होता तो किसी को एक दिन देखना नहीं पड़ता। जो हो रहा है एक्चुअली, हम लोग को जो एप्लीकेशन वो डीप ईयर में जाता है। सैंक्शन तो होता है, पैसा सैंक्शन होता है, कुछ काम भी होता है, लेकिन कंक्रीट काम नहीं It's not होता है यहाँ पे। 25. हाँ, तो एक्चुअली हम लोग को, मेरा अपील है आप लोग सबको, ये एक स्टेप लेके एटलीस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग को पता नहीं है जब किसको करना है, लेकिन ये तो हम लोग का क्या कसूर है। हम लोग का तो घर पहले से बना हुआ है, ऐसा नहीं है जो हम लोग गंगा के पास जाके बैठे हैं। तो गंगा पहले से है, हम लोग भी पहले से है, तो काम तो गवर्नमेंट को करना है। ये तो कोई एनजीओ क्या हम लोग कुछ मिल के कुछ कर नहीं सकते सब कुछ। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है, पता नहीं किस लिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और जो अफेक्टेड पीपल है, आप लोग के ड्राम कह सकते हैं, इसका आवाज बहुत जाता नहीं है। आप लोग आए हैं तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, जब हम लोग का आवाज आप सेंटर गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। जो यहाँ पे बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी होने वाला है। कि आप तो दूर था, गंगा बहुत दूर था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर था। मेरा घर गिर गया था उस टाइम 52 में, 2 किलोमीटर दूर था वो। तो गंगा तो आ ही रहा है। अब जो आ रहे हैं यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है। अब अगर 100 मीटर भी धस जाए तो 100 फैमिली बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी 1000 फैमिली हो सकता है, मैं काउंट नहीं किया, बर्बाद हो गया है। या तो स्कूल में शेल्टर लिया है, या तो ट्री के कोई पेड़ के नीचे है, खुला आसमान के नीचे है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत
जो रिलीफ मटेरियल भेजा है, कोई स्कूल में से ये लिया है, शरण लिया है, लेकिन ये तो ये नहीं है, प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। प्रॉब्लम का समाधान ऐसे है जो उसको बांट दिया जाए। तो हम लोग तो भीख नहीं चाहिए, हम लोग जीना चाहते हैं यहाँ के लोग, जो एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वैल्यू के साथ। जो एक्चुअली हम लोग का क्या कसूर है? जो गंगा के किनारे हम लोग रहते हैं, एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो गंगा के किनारे रहते हैं वो गंगा के किनारे ही रहते हैं, उनका घर चला जाता है फिर गंगा के किनारे बसते हैं। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है, वो गंगा के इतना प्यार करता है, जो छोड़ के नहीं जाता है। एक बार गंगा इरोशन में जाता है, फिर वो करीब में आके बैठ जाता है। तो क्या अगर इसको बात दिया जाए, जो हम लोग को जो रिलेशन है गंगा के साथ, वो बरकरार रखा जाए तो अच्छा रहेगा। और ये तो करने के लिए हम लोग को सबका साथ चाहिए। हम लोग को तो रिलीफ मटेरियल्स में नहीं चलेगा। और एक काठा या थोड़ा जमीन दे दिया तो कैसे घर बने? और घर बने भी वो रहने के लायक नहीं होता नहीं है। एक घर, एक 3-4 बच्चे, एक फैमिली कैसे रह पाएगा? तो होता नहीं है। तो आप लोग का अननेसेसरी रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए, ये तो डीप प्रॉब्लम है। अभी जो होता है वो तो स्कूल में जाके रह जाता है, स्कूल के तो पढ़ाई के बहुत प्रॉब्लम होता है। जो जब स्कूल खुल जाता है तो अगर शेल्टर हाउस स्कूल बन जाए तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, हैम्पर होता है। ऐसे तो इलिटरेट बहुत है यहाँ पे, ये स्कूल ड्रॉप आउट बहुत है। इसको एक प्रॉब्लम है यहाँ का। और दूसरा तो गंगा का प्रॉब्लम आ गया है सामने। तो सारी तरफ से एक आपात स्थिति है यहाँ। आप लोग तो ये है, जो आप लोग आइए देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। हम लोग को तो ऐसा लगता है जो कुछ होने वाला नहीं है, अगर हो जाए तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स रहेगा कि कुछ हो जाए। यही हम लोग को एरिया के लोकल यही देखते चाहते हैं कि हो सकता है आपके थ्रू से हम लोग को कुछ दिशा निर्देश मिल जाए। कहीं पे थोड़ा सा ड्राइंग मैन कैच स्ट्रॉ, तो एटलीस्ट हम लोग को ऐसा लगता है जो पोजीशन है कैटास्ट्रोफिक, तो आप लोग आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और भाई डिस्कस कर रहे हैं, वही अच्छा लगता है। जो थोड़ा सा होप, थोड़ा सा लाइट ऑफ होप देखा है, तो हो सकता है कुछ होगा, यहीं से होगा, पता नहीं कब होगा। हम लोग को थैंकफुल सबको, लेकिन हम लोग का बहुत डायर नीड है जिसको बांध दिया जाए, रोक दिया जाए इरोजन को। जो हम लोग को पता है जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गंगा रोकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो होगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो होगा, ये तो पॉसिबल है। हम लोग देखा है बहुत हाँ। सर एक बात मैं आपको और जितना लोग हम इकट्ठा हुए हैं सभी को बताना चाहते हैं कि हम कोई आशा नहीं दे रहे कि कुछ होगा बोल के, क्योंकि ना ये आप जिस तरह के से आप बात कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम उठाए हैं और उसका सॉल्यूशन जो है, जो आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो होगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो होगा, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ना वो चाहत उनके पास तक पहुंचेगा नहीं। तो ये उनका पास पहुंचाने के लिए हमको इकट्ठा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोकल लेवल से प्रेशर क्रिएट करना। तो मेरा ये सुझाव है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा एक सुझाव है कि जो प्रॉब्लम है हम आपके साथ में हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर जो देख रहे हैं आप, जो कि कार्नेपी, जो कि यहाँ पे प्रिज्म, जो कि वहाँ पे यूथ कॉन्क्लेव, यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका आप लोगों का जो लोकल लोगों का जो समाहर जो है, और स्फेयर इंडिया एकेडमी, स्फेयर इंडिया, तो सब मिल के हम लोग साथ में लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई शुरू होना चाहिए निजी स्तर से, लड़ाई हमारे स्तर से नहीं ना, आपने ठीक नहीं कहा। हम लोग स्टार्ट भी किया था, लेकिन बीच में वो ठीक है, वो उसको हम बाद में बात करेंगे। जिस स्टार्ट किया है, क्यों टूट गया, क्यों नहीं हुआ, हमको तोड़ने के लिए बहुत सारा शक्ति इस बीच में
हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम हाँ, लोग एकजुट रहेंगे, रहना हाँ, चाहेंगे, ये हमारा वादा होना चाहिए। तो मैं महबूब भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, महबूब भाई कुछ बोलना चाहते थे। ठीक ठीक। दीपंजन ने बताया कि महबूब भाई कुछ बोलना चाहते थे, तो महबूब भाई आपसे भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। सर सुन पा रहे हैं आप? আঁচল তোলো, যখন শাড়ি তুলতে তখন আঁচলটা পুরো তুলতে হবে। আঁচলটা ফিরে আসো। হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো महबूब भाई, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমার আমার ভিডিওটা বুঝতে পারছি না যে দেখা যাচ্ছে কিনা। आप अल्तमस भाई, can you help महबूब भाई to just show his video? ओके, आप बोलते जाइए महबूब भाई, टाइम कम है। हाँ सर, वीडियो दिख रहा है। अभी अभी सर जो बोल रहे थे ना, अभी अभी हमारा यहाँ दुलियान का सर जो बोल रहे थे, लगभग वही बात हमारा भी है। यहाँ पर एक बात तो है कि गंगा इरोशन होता है और नेग्लिजेंसी की वजह से ही ज्यादातर होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा इससे, सर जितना भी बात अभी बोले हैं मिजानुर रहमान सर, उससे हम अग्री करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है ना वहाँ पर वासुदेवपुर का और चाचोंडो जो शमशेरगंज ब्लॉक का है, जो आए दिन आप लोग देख रहे हैं टीवी और न्यूज में, इसमें थोड़ा बहुत क्या बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है वहाँ का जो लोकल गांववासी है ना, विलेजर्स है, लोकल विलेजर्स, और वहाँ का कुछ माफिया वगैरह है सर। अगर आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। वहाँ पर एक एक दिन में सर कम से कम 50 लॉरी या फिर 100 लॉरी करके वहाँ पर गंगा का मट्टी काट के बेच दिया गया है। हर दिन एक एक दिन में 50 से 100 लॉरी तक वहाँ पर मट्टी काटा है सर। वासुदेवपुर एरिया, चाचंड एरिया, और भी जो वहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर का एरिया था, वहाँ पर एक माटी माफिया, जैसे बिहार में बालू माफिया होता है ना सर, तो यहाँ पर वो सब माटी माफिया था। तो हम जब बोलने गए थे एक बार, हमारे यहाँ पर आए थे 2000 शायद 18, हाँ 2018 में आए थे वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, तब हम एक्टिव थे बहुत इस बारे में। लेकिन वहां पर हम जब गए थे तो वो लोग हमारे बात नहीं। अभी जहाँ पर इरोशन हो रहा है ज्यादातर वासुदेवपुर एरिया में और औरंगाबाद के लगभग उसी एरिया में, तो वहाँ पर बालू माफिया और सॉरी मिट्टी माफिया वालों का और विलेजर्स का भी बहुत बड़ा रोल है सर। क्योंकि वहाँ का विलेजर्स कुछ बोल नहीं रहे थे। जब भी हम उनसे बात किए हैं तो वो लोग इतना डरा हुआ था, ऐसे ही डरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत प्रेशराइज हो रहा था पॉलिटिशियन से, ऐसा कुछ नहीं था। नेग्लिजेंस था गाँववासी का, ठीक है सर। तो अभी जो स्थिति है उसमें तो ठीक है, काम नहीं हो रहा है, ये भी एक है। लेकिन मैंने वहाँ का जो इरोशन अभी हमने देखा है सर, अभी जिस स्थिति में काम हो रहा है ये नहीं टिकेगा वहाँ पर। वो जो बालू का बस्ता फैल रहा है ना, बाली भर के और मिट्टी डाल के, तो उसमें काम नहीं होगा। पहले पॉर्कुपाइन होता है एक सिस्टम, पॉर्कुपाइन सिस्टम गवर्नमेंट लोग भी जानते हैं और सभी जानते हैं, लेकिन ये सिस्टम वहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है हमको मालूम नहीं है। पॉर्कुपाइन सिस्टम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन वो काम हम देख नहीं रहे। वहाँ पर वो खाली वो बालू का बस्ता ही ज्यादा फैल रहा है। बालू का बस्ता के साथ ही पॉर्कुपाइन के साथ ही बस्ता या फिर गोल्ड डालना जरूरी होता है। तो ये दो बातें हैं। और मिजानुर साहब जो बोल रहे थे, यहाँ का हिस्टोरी है गंगा इरोशन का, आगे भी होगा, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से काम हुआ तो ये रोक सकता है, वरना और भी स्थिति खराब होगा सर। अभी इसमें हमारा भी रोल होगा, करना होगा, हमको भी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी एक्शन लिया जाता है ना, गाँव आप जो बोल रहे थे अभी प्रोटेस्ट वगैरह गाँव वालों को, तो जब भी यहाँ पर कुछ लोग कोशिश करते हैं
तो उनको पुलिस या फिर पुलिस से ही थ्रेड वगैरह मिलने लगता है, और फिर वो प्रोटेस्ट वगैरह जो भी करता है उसको कुछ न कुछ केस वगैरह दे देता है, तो फिर वो प्रोटेस्ट भी रुक जाता है थोड़े ही दिन में। और नेग्लिजेंसी बहुत है गांव वालों की तरफ से कि चलो जो हो रहा है भगवान भरोसे है, ऐसा कुछ हो रहा है। जितना स्ट्रांग इसका प्रोटेस्ट होना मांगता था वो नहीं हो रहा है। तो देखिए, अभी हम लोगों को ही करना है। आप अभी मीटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो काम हमारा था हमने नहीं किया है सर, इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रहा है और आगे दिन में भी ज्यादा ही आएगा, मुझे जो लगता है सर। बस इतना महबूब ही। भाई, जी मेरा एक दोस्त पूछे थे जी इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन कोई चीज का ऐसा रिवर इरोशन का ऐसा सॉल्यूशन एक दिन में, मतलब ये नहीं कि आज ही उसका सॉल्यूशन हो जाए। सॉल्यूशन का सबसे बड़ा ये है कि वहाँ का जो लोग, जो आप बोल रहे हैं पोर्कुपाइन सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन वहाँ का लोग उस जानते अच्छी तरीके से जानते हैं नदी कौन से किस जगह पर टूटा है, इरोशन किस जगह पे ज्यादा हो रहा है, कब से इरोशन शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है। ये जो क्यों का बात है, क्यों का सवाल, इसका ये सवाल का जवाब भी लेना जरूरी है। तो हमने सुना लोगों से, आप लोगों मैंने आप में से कोई बोला है उसका जी कि पिछला 4 साल से, और पिछला 4 साल से ये कोइंसिडेंस हो सकता है, जो फरक्का बैरेज के 100 मीटर दूरी पर हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा रेलवे ब्रिज हो रहा है। तो ये तो 50 मसीहा में हमारा जो एक बहुत बड़ा रिवर साइंटिस्ट थे कपिल भट्टाचार्य, तो कपिल भट्टाचार्य का कहना था कि नदी के ऊपर अगर नदी शासन रिवर को अगर हम उतना ही कंट्रोल करना चाहेंगे तो नेचुरल जो सिस्टम वो टूट जाएगा। तो एक तो फरक्का बैरेज देके नदी को आपने खराब कर दिया, उसके बाद उसका 100 मीटर आगे उसको एक रेल लाइन बना रहा है। तो रेल लाइन बनाने से रिवर का जो इकोसिस्टम वो खराब हो जाएगा, बालू माफिया बढ़ेगा, ये सब कुछ सिल्टेशन बढ़ेगा, सिल्टेशन बढ़ने से बालू माफिया तो बढ़ेगा ही। तो ये सब कुछ होगा, होता रहता है। तो इसका कारण ये है कि एक तो लोकल लोग जब तक नहीं ये होने नहीं देंगे, लोकल लोगों का उतना, तो ये कम से कम थोड़ा सा एजुकेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल एजुकेशन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इकट्ठा होने से क्या फायदा हम लोगों को हो सकता है, वो एजुकेशन के बाद। तो ये एजुकेशन, क्योंकि ना हम मेरे को किसी ने 5 रुपया दिया और मैंने बिक गया, मैंने सब कुछ उनको दे दिया, ये ऐसा अगर चलता रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे शायद, मतलब शायद ही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आगे ले जाने के लिए है इस एडवोकेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास, तो आपके पास आप ये जो पहला ऐसा एक कंसल्टेंसी हुआ जो नेशनल लेवल पे है, तो शायद इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भाग ले सकते थे, नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि उनको, लेकिन हम नहीं दबेंगे, हम उसको रिकॉर्डेड वर्जन तो देंगे, लेकिन लोकल प्रेशर बनना बहुत जरूरी है। लोकलाइजेशन जिसको कहते हैं, लोकल पीपल का एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, लोकल पीपल, हमारा एक कमिटी था, हम लोग ये काम कर रहे थे, हम तो सस्टेनेबिलिटी किया, बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन आज तो नहीं है। ये तो बात सही है, आज तो ऐसा हो रहा है। तो जो उसका मतलब ये है, लोकल लोगों को दबाव में रखने का जो अलग सा सिस्टम वो बना लिया, किसी ने बना लिया जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो लोकल लोग वो वेस्टेड इंटरेस्ट को समझकर लोकल लोगों को चाहिए जो मजबूती से उसको, मतलब गंगा इरोशन को हम होने नहीं देंगे। गंगा इरोशन जो कारण के लिए हो रहा है वो कारण का हम दूर रखेंगे। ये अगर हम कर पाएंगे, क्योंकि ना इसमें 2020 साल से आज 4 साल में ये दिखा गया है, मालदा साइट का जो
मंदिर है, वो मंदिर और उसके सामने जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, जो स्पार लगाया गया है, वो बहुत मजबूत रखने के लिए आपका फरक्का बैरेज का जो 111 गेट है, 111 गेट में से जो मुर्शिदाबाद साइड का गेट है, उस गेट को खोला जा रहा है। मालदा साइड का गेट को नहीं खोल रहा है। तो अगर गेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता पानी का, तो एक साइड का इरोशन कम होता, नहीं भी हो सकता था। तो चलिए इसका सर हाँ हाँ दीपांजन, हमारा सर फारूक हाँ फारूक भाई, सर हमारे साथ जुड़े हुए कीटू शेख ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी का सेक्रेटरी है, वो कुछ 2-4 बातें कहना चाहते हैं। हाँ 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 फिटू भाई बोलिए। फिटू, हाँ, हम बोल रहे हैं कि हम तो सबका डिसीजन लिए देखते हैं, सुने हैं। हम लोग बहुत बार गया वहाँ, सबसे बात किया, कुछ लोगों को हेल्प भी किया, मगर वहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या है, उन लोग को अगर 2 किलो चावल मिल जाता है तो चुप हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशराइज है उन लोग पर। एक चीज है, जैसे कि हम 3 दिन पहले जब गए थे वहाँ, एक घर गिर रहा था तो उनका ईटा तोड़ने के लिए, घर तोड़ने के लिए, तो देखा एक जगह बस रहा है, मगर नदी में जा रहा है तो बाली का बोरा फेंक रहा है वहां। तो कोई मना कर रहा है और कोई फेंक रहा है। उन लोग में एक नहीं है, एक जो है उन लोग में भी नहीं है। ये बात है, हमने हम खुद आंख से देखा है, हम खड़ा था वहां, ऐसा हुआ था सिचुएशन की हाथापाई भी हो सकता। फिर जाके हम लोग भी समझाया कि देखो तुम्हारा भी घर गिरा है, उनका भी घर गिरा है। तो जो पॉलिटिकल पावर है जिसके हाथ में, वही सबसे बड़ा वहां का पॉलिटिकल पावर है। इसी वजह से कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, जो आवाज उठाएगा उसी को जो महबूब सर ने बताया, सर से हम भी बहुत दिन से काम किए हैं, सर हमको जानते हैं। तो वो वहां पे जो भी आवाज उठाएगा उनको थाना से अरेस्ट होना पड़ेगा, या फिर वहां का जो माफिया है उनसे मार खाना पड़ेगा। इसी वजह से कोई आवाज नहीं उठाते, ऐसा एक है। 2 नंबर जो है, वहां का नदी के किनारे जितने भी घर है, ज्यादातर वहां का लोग उतना एडुकेटेड नहीं है। ज्यादातर बाहर काम में जाते हैं, यहाँ बीवी बच्चा रख के बाहर काम में जाते हैं, बहुत कष्ट से विदेश से पैसा भेजते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। मगर जो उन लोग का घर गिर गया, जो स्कूल में है वो भी बाहर में है अभी तक, बीवी बच्चा स्कूल में है, वो बाहर में है। ऐसा है, जो एडुकेटेड जो आप बोल रहे थे कि उन लोग में एडुकेटेड उतना नहीं है। ठीक है, तो पहले पहले जो है, आप लोग आए हैं, हम बहुत खुश हुए। ठीक है, तो एक एक को, जैसे बंगला में कहावत है कि बिरल के गले में घंटी कौन बंधेगा। ठीक है, तो वही वहां का सिचुएशन नहीं है, जो भी आवाज उठेगा उनको ऐसा होना पड़ेगा, में अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाते। मगर सब सब कष्ट में है, सब वहां का सब लोग कष्ट में है, फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता। तो आप लोग आए हैं, आप लोग इतने बड़े एनजीओ है, हमको फारूक भाई बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग एक साथ होके, ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ चिट्ठी वगैरह दे के या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कुछ हो सके, ठीक है, या फिर डीएम को, ये लोग आते हैं, बहुत बार आए हैं, देख के चले जाते हैं, जैसे मेला होता है ऐसे देख के चले जाते हैं। जैसे आए थे कुछ दिन पहले, जंगीपुर का एक एमएलए था, वहां वो आके का जो बोरा फेंकते हैं, इससे कोई काम नहीं होगा। हमारा यहाँ का जो लोकल एमएलए है वो बोल रहा है अरे इसी से काम चल जाता है। तो देखिए, एक एमएलए बोल रहा है इसमें काम नहीं होगा, और एक एमएलए बोल रहा है इसी से यहाँ का काम चल जाता है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ है? ना रिकॉर्डिंग कहाँ है? दोनों का कहने का रिकॉर्डिंग देखिए। बात ये है, थोड़ा स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। वो छोड़िए, आपने जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो एक्टिविज्म, जो ज्यादा एक्टिव बनेगा उसको पनिशमेंट, उसको थाना में अरेस्ट करना, माफिया लोगों से, तो ये ऐसा एक्टिविज्म नहीं दिखाने का है। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट। तो इसको हम
बांट लेते हैं। एक तो एडवोकेसी नेशनल लेवल पर, एक एडवोकेसी स्टेट लेवल पर, और एक लोकल लेवल पे यूनाइटेड होने का। तो लोकल लेवल में यूनाइटेड का होने का ये जो काम, ये कार्नेपी नहीं कर पाएगा, ये यूथ कॉन्क्लेव नहीं कर पाएगा, ये प्रिज्म नहीं कर पाएगा, ना तो फेयर इंडिया कर पाएगा। तो ये लोकल लोगों को ही करना होगा, लोकल लोगों को ही यूनाइटेड होना होगा। लोकल लोग चाहने से कोई भी चीज कर सकता है, लेकिन उनका जो वो रहना पड़ेगा कि 2 किलो चावल काफी नहीं है मेरे लिए, मैं 2 किलो चावल के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। ये सोच दिमाग में, मतलब वो तो थोड़ा सा चेंज है। वैसा चेंज जैसे कि हम कह सकते हैं कोई वोट लेने के लिए, एमपी पोजीशन के लिए, एमएलए पोजीशन के लिए, तो हम कह सकते हैं जी रिवर इरोशन का आपका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा है? एजेंडा है तो आप आओ, नहीं है तो आप जाओ। हम कोई नहीं कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं। तो ये कहने के लिए दम होना चाहिए। वो दम, मैं तो ये तो रिकॉर्डेड होगा, तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि वो दम होना चाहिए। और वो दम एक दिन में एक आदमी के अंदर नहीं आता है। दम आता है जो सब मिल के काम करते हैं, जब सब मिल के काम करते हैं। हम मुर्शिदाबाद जिला में आपका जो जगह है, उस जगह में ऑपरेशन इतना है, उसके बारे में हमको मालूम है, उसके बारे में हमको मालूम है। ऑपरेशन इतना है बोल के मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कोई भी उसमें भूमिका ही नहीं है। जब गंगा इरोशन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है, मुर्शिदाबाद का लोग समझे। तो लोगों का जो सोच है, कलकत्ता का कोई लोग उसमें कोई सोच है उनका नहीं है। सुंदरवन के बारे में सोच है, क्योंकि ना सुंदरवन में कुछ होगा गड़बड़ तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है, इसलिए हम सुंदरवन का बहुत प्यारी होते हैं। सर वही बोल रहे हैं कि आप लोग आए हैं तो हम लोग का आवाज जो है आप सेंट्रल तक, हाँ आप लोग लेके जाइए, हम लोग आप लोग के साथ है, जो जो करना होगा हम लोग करेंगे। मगर वही बोल रहे हैं सर कि लोकल लोग बहुत पॉलिटिकल प्रेशराइज्ड में है, बहुत। सर हाँ ठीक, फारूक भाई बोलिए। हाँ, तो हमारे साथ और एक विलेजर से सफ़ी सुल्तान चाचंडा से है। वो खुद ही इफेक्टेड है, उसका घर नदी के किनारे में है। वो कुछ बोलना चाहते हैं। सफ़ी ठीक है। सुल्तान। I am Sofi Sultan speaking from Chachanda. Everybody, थैंक यू सुल्तान, salam, सुल्तान भाई namaskar. नमस्कार। 4 years ago, continue cutting the river bank. Many agriculture field destroyed and house and poor man and human live in the river bank. Largest number of BD worker and laborman and live to village Kerala and Kolkata, Odisha. 14 years voyage. Isco study college. Then केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसके बाद जो आदमी चला गया काम में, कोई आदमी इलेक्ट्रिक शॉर्ट में मृत्यु हुआ, कोई आदमी बिल्डिंग से गिर गया था, तो वो आदमी जो आदमी है ना, वो कैसे लैंड जमीन खरीद करेगा, घर बनाएगा? ऐसा बहुत समस्या है। मेरा घर रिवर बैंक के पास है। हम एवरीडे बाथिंग गंगा रिवर एवरीडे। जब नदी में जल बढ़ गया ना, उसके बाद जो ब्लॉक प्रशासन है, जो बाली का बस्ता है, वो बस्ता गिराया है। जो गिरा है 1000 जो नाव है, नौका है, तो लिखता है 10,000 नौका। तो पिछले 4 साल से लगातार जमीन गंगा में सीमाना रही,
डूब रहे घर, सरकार कोई नहीं कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग यही है, जो मेरा गांव में जो युवा यूथ जनरेशन है, यूथ जनरेशन के साथ मिलकर टुडे इवनिंग टाइम मीटिंग 6 PM, जो मीटिंग में हम ये करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, जो वाटर मिनिस्टर, वाटर डेवलपमेंट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल, हम सबको एकजुट करके हम अच्छा टीचर के साथ हम एक ईमेल बनाएंगे एवं ईमेल के हम मैसेज भेजेंगे। यही मेरा मूवमेंट, जो कोई खर्चा नहीं होगा, लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट स्टेप है, जो हम सब मिलकर जो यूथ जनरेशन मिलकर हम ईमेल भेजेंगे, जो चीफ मिनिस्टर है इन वेस्ट बंगाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाटर डेवलपमेंट मिनिस्टर, यही मेरा बात है, फास्ट मूवमेंट के लिए मेरा काम। तो टुडे मीटिंग आप तो सुन रहे हैं मेरा बात। थैंक यू सुल्तान भाई। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव लिया, और यंगर जनरेशन जो है उनमें जो दम है, उनमें जो काम करने का जो इरादा है वो अलग है। हमसे वो नहीं हो पाएगा, हमारा उम्र बढ़ गया है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप कर लीजिए, और उसका अगर शेयर करना है तो मैं ये अल्तमस भाई को या तो उनको गुरसिमरन सिंह जी को इनको बताता हूँ कि स्फेयर इंडिया के तरफ से, स्फेयर इंडिया एकेडमी की तरफ से, हमारे तरफ से भी अगर आप चाहे तो उसका ईमेल कॉपी हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। हम स्फेयर इंडिया मीटिंग के बाद जो डिसीजन होगा, उसके बाद जो ईमेल कॉपी हम लिखेगा, उसके बाद जो हम भेजेंगे, तो आप जो हम जरूर शेयर करेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, thank you. And I would request Dipanjan to just follow up with because you are the leader of the India chapter of Youth Conclave. So आप थोड़ा सा as one of the organizers, आप सोफी सुल्तान भाई से इसका, सोफी सुल्तान भाई का नंबर मेरे पास है, आई एम शेयरिंग दैट हिज नंबर विथ यू, एंड आप उनसे बात कर लेना। सर हमारा साथ और एक टीचर है, असीरुद्दीन सर है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो कुछ बोले। हेलो सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। असीरुद्दीन सर। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो अल्तमस भाई, it's I think it's already time is up. It is 4:40 now, so you can take a call. Thank you so much, दादा, and all the जो भी हमारे साथी वहाँ से जुड़े, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट सजेशंस भी दिए, और क्या करंट सिचुएशन है ये भी हमें बताया। तो एक तरह से हमारे लिए भी ये बहुत ही आई ओपनिंग सेशन है, और क्या एज ए ग्रुप, एज ए स्टेक होल्डर्स हम लोग कर सकते हैं। जो आपने एक दो अच्छे सजेशंस भी दिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हम सब मिलकर इसकी तरफ मिलकर कुछ कदम उठाएं। जैसे कि आपने एक अच्छी शुरुआत बताई कि ईमेल के थ्रू एक हम लोग गवर्नमेंट्स को भी और अदर स्टेक होल्डर्स को भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। तो आई थिंक सर, मैं लगता है कि वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन ऑफ द सेशन, और आप अपनी तरफ से भी कुछ फाइनल
कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे तो हम लोग फिर क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक अल्तमस भाई थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसका जी। जो रिकॉर्डिंग होगा ये एनडीए में और एनआईडीएम को भी शेयर कर दीजिएगा, श्योर श्योर सर, डेफिनेटली ताकि हम लोग ताकि रिपोर्ट उन भी एक लोगों के बनाएंगे। पास भी। एंड धीमाजी से मैं आरवीसी को मैंने रिक्वेस्ट किया, वहाँ ब्रह्मपुत्र का इवैल्यूएशन जो होता है उसके ऊपर उन्होंने एनडीएम को जो रिपोर्ट भेजा है 2 साल पहले, वो रिपोर्ट का भी मैं ले लेता हूँ और उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि उसके साथ इसका कोई कॉमनलिटी है तो उसको भी हम उससे भी कुछ एक्सेप्ट ले सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट दीपांजन टू प्लीज कंपाइल बोथ द रिपोर्ट्स। श्योर सर, श्योर, सर्टेनली। Okay. So thanks to everyone who have joined, especially the people, those who have lost their lands, those who are affected by river erosion, Ganga river erosion in last few years, since last few years. So we are with them. We are like to show our solidarity that we are with you all, and we are trying to develop come out with a solution. सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हो जाएगा, और हम आपको चाल डाल ये देने का वादा नहीं करते हैं। हम जो माने हम जो सॉल्यूशन का सोच रहे हैं, ये सॉल्यूशन जैसे कि मैंने बोला एपीएमसी डीआरआर एक लेवल है जहाँ पे एशिया पैसिफिक लेवल का जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। सो ये बायलैटरल डायलॉग का एक शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि ना फरक्का लेकर बांग्लादेश में भी बहुत दिक्कत वाली बात हो रहा है, जो जिसका मैं भागीदार हूँ, मैं सुना हूँ। तो ये आप लोगों को लिए भी बोल रहा हूँ कि इसके अगर एपीएमसी डीआरआर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है इंडिया देश के बाहर, तो हम बायलैटरल डायलॉग का भी एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनता है। So all these things, तो I would like to thank you all जो हमारा मतलब ये जो वेबिनार हुआ है, वेबिनार पे ज्वाइन किए हैं, एंड mainly those who are the victims of Ganga river erosion. I would like to thank you all. So मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा एकजुट होने का, मतलब आज से वादा कीजिए कैसे हम हो सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. So we can close now. Thank you, sir. Thank you. Thank you.